In today's session, I cover issue of shares. Issue of shares are also a very important topic of company accounts, and this is widely useful for class 12 students, BBA students, BCom students, MCom students, and all financial students. Everyone must know how the company can issue share. This topic is linked with my yesterday session. In my yesterday session, I covered what are shares and what are share capital. In today's session, I try to cover how the company can issue share in the market, or what the procedures can accountant do while treating an issue of share in the market. मतलब कोई भी accountant किस तरीके से accounting treatment करता है when the company is going to issue share in the market. In this, we also study what is the procedures that is being followed by a company, as well as we also see what all steps the accountant can take in making all the entries during the issue of share and receipt of money on behalf of issue of share. Now, first of all, we must discuss what all modes the company can adopt by issue of share. The company can issue share in two ways, either for cash or for consideration other than cash. कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है फॉर कलेक्टिंग कैश फ्रॉम पब्लिक. मीन्स अ कंपनी wants to collect funds, wants to collect money to create their capital and to use that fund in our day-to-day requirement. तो इसको हम कहते हैं कंपनी में इशू शेयर फॉर कंसिडरेशन ऑफ कैश. बट अगर कंपनी कैश के अलावा किसी और फॉर्म के लिए या किसी और अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अगर शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है, देन दैट इज नोन एज issue of share for consideration other than cash. Just we take an example to understand what is consideration other than cash. It may be possible कि कंपनी को अपने सेटअप के लिए एक लैंड की रिक्वायरमेंट है, एंड द कंपनी कैन टेक लैंड फ्रॉम सम पर्सन मिस्टर ए, और कंपनी उस मिस्टर ए को पैसे न देने की बजाय कंपनी के कुछ शेयर्स दे देती है. कंपनी ने क्या दे दिया? कंपनी ने उन पर्सन्स को, मिस्टर ए को, कंपनी के कुछ शेयर्स दे दिए. नाउ दिस इज नोन एज इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. सो द कंपनी कैन कलेक्ट फंड्स from the issue of share, as well as the company can take some required assets by issue of share that came under issue of share consideration other than cash. Now we will discuss what all steps the company can take while issuing shares. The company can follow so many steps. We will discuss all the steps one by one. कंपनी सबसे पहले क्या करती है? इशू करती है प्रोस्पेक्टस. कंपनी कैन इशू अ प्रोस्पेक्टस. दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस इज अ काइंड ऑफ इन्विटेशन टू द शेयर होल्डर्स. प्रोस्पेक्टस इज जस्ट अ काइंड ऑफ इन्विटेशन from the company to the shareholders, and in prospectus all the things, all the informations related with shares is completely written. Means what is the price of individual share, what is the position of company, what the company is going to do, each and everything, what is the financial position, how the company can collect their funds, what are the contribution of the owners of the company. All the things are written in detail in prospectus of company. Means the first step the company can do while issuing of share is issue of prospectus. कंपनी अपने लिए अपनी एक prospectus issue करती है जिसमें कंपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन अपने बारे में एज वेल एज शेयर्स के बारे में मार्केट में देती है. With the help of that information, we people can get awareness about the company's position, the company's wealth, the company's owner, company's product, company's share, company's individual share price, all the things related with company as well as company's share. हमें पूरी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ प्रोस्पेक्टस कंपनी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करती है. उसके बाद व्हाट वी पीपल डू, वी डिसाइड वेदर वी हैव टू बाय द शेयर और नॉट.
इफ वी डिसाइड वी हैव टू बाय शेयर ऑफ पर्टिकुलर XYZ कंपनी, तो हम क्या करेंगे, वी पुट एन एप्लीकेशन, हम क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन कंपनी को देंगे कि यस आई वांट टू अप्लाई फॉर पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स। तो कंपनी क्या होगा, इशू करने के बाद प्रोस्पेक्टस के कंपनी जनरल पब्लिक से एप्लीकेशंस को रिसीव करती है। कंपनी is going to receive applications from the shareholders with the required number of shares. कंपनी हर पर्टिकुलर शेयर होल्डर से ये रिसीव करेगी कि उसको कितने नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंपनी शेयर होल्डर से रिसीव करती है। दिस केम अंडर टू रिसीव एप्लीकेशंस। कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, लेटर ऑन शेयर होल्डर ने अकॉर्डिंग टू देयर विश देयर रिक्वायरमेंट अपने पैसे को कंपनी में लगाया, या willingly ये रेडी हो गए कि नहीं, आई वांट टू परचेज शेयर फ्रॉम फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड दिस अमाउंट ऑफ शेयर आई वांट। तो इसे हम कहते हैं कि कंपनी को इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल पब्लिक ने शेयर की रिक्वायरमेंट के लिए कंपनी के पास एप्लीकेशन पुटअप की। एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद व्हाट द कंपनी कैन डू, कंपनी अलॉटमेंट करती है शेयर्स के। कंपनी उन शेयर होल्डर्स को, उन एप्लीकेशन होल्डर्स को जिनके एप्लीकेशंस कंपनी के पास रिसीव हुए हैं, उनको कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करती है। अगर कंपनी के पास जितने शेयर कंपनी ने इशू किए हैं उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव होती है, तो कंपनी सारे अपने एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके और सभी को शेयर्स अलॉट कर देती है। एंड ऑल द एप्लीकेशन applied people can become the shareholder of the company, but it may be possible कि कंपनी के पास नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम आए, मींस कंपनी ने जितने मार्केट में शेयर्स लॉन्च किए थे उससे कंपनी को कम एप्लीकेशंस रिसीव हो। उस केस में अगर मिनिमम लिमिट से कम एप्लीकेशंस रिसीव होती है तो कंपनी को वो पूरा प्रोसीजर को कैंसिल करके और जो भी एप्लीकेशंस रिसीव होती हैं उन सबके एप्लीकेशंस को कंपनी वापस कर देती है। बट अगर मिनिमम लिमिट से ज्यादा एप्लीकेशंस रिसीव होती है तो कंपनी उनको अकॉर्डिंगली शेयर्स अलॉट कर देती है। इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी के पास जितनी भी कंपनी ने शेयर लॉन्च की थी उससे ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव हो गए। अगर मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होते हैं उस केस में कंपनी हैज एन ऑप्शन टू इशू shares on pro rata basis, और the company में decide first come first serve, और जो भी हम first required number of applications receive होते हैं उनको shares allot करती है, rest के applications को वो company reject करके वापस कर देती है। Means the third step which the company is going to take is allotment of shares. उसके बाद according to company's requirement, company can decide whether the company has to make calls for required funds from public. Now, I think the concept is clear how the company can launch their share in the market and how we people can apply for shares. किस तरीके से कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में लॉन्च करती है और किस तरह हम शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, शेयर्स परचेज करने के लिए मार्केट में अपनी या कंपनी को अपनी रिक्वायरमेंट प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी मस्ट नो दैट व्हेन द कंपनी डिसाइड टू इशू शेयर इन द मार्केट, कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो कंपनी पूरे पैसे एक साथ ले ले शेयर होल्डर से। पूरे पैसे एक साथ लेने का मतलब, लेट अस सपोज कंपनी ने 1000 शेयर इशू किए और एक शेयर 10 रुपीज का था, मतलब द होल 10 रुपीज कैन be collected by the company at a single time। जिस समय हमारी कंपनी शेयर होल्डर्स को अलॉट कर रही है शेयर, उसी समय अगर कंपनी पूरे के पूरे शेयर के पैसे शेयर होल्डर से ले लेती है, पूरे 10 रुपीज ले लेती है शेयर के, तो उसे हम कहते हैं रिसिप्ट इन लंप सम। मीन्स द होल अमाउंट ऑफ शेयर is being paid by shareholder to the company at a single time. This is known as receipt in lump sum or payment in lump sum. Payment in lump sum in relation to shareholder and receipt in lump sum in relation to company. But it may be possible कि company पूरे शेयर के 10 रुपए
कंपनी जिस समय शेयर लॉन्च कर रही है, जिस समय शेयर अलॉट कर रही है, उस समय ना लेकर कंपनी थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में शेयर होल्डर्स से पैसे ले। ऐसा कंपनी इसलिए करती है क्योंकि कंपनी जैसे ही पूरे पैसे शेयर होल्डर से ले लेगी, कंपनी को उनके डिविडेंड्स रेज करने होंगे, तो कंपनी भी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जितना पॉसिबल होता है इसमें वो डिले करती है, ताकि कंपनी के रिक्वायरमेंट्स भी मीट आउट होती रहे और शेयर होल्डर्स के पैसे भी उनको रिलैक्सिंग मोड में शेयर होल्डर्स में उनको पैसे दे सके। तो इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी अपने पूरे रिक्वायर्ड 10 रुपीज के इंस्टॉलमेंट को डिवाइड कर दे। मीन्स कुछ पैसे कंपनी एप्लीकेशन के साथ ले ले, जिस समय शेयर होल्डर एप्लीकेशन कर रहे हैं उस समय कुछ पैसे ले ले, कुछ पैसे जब कंपनी शेयर्स को अलॉट करती है उस समय ले ले, कुछ पैसे जब कंपनी थोड़े टाइम पीरियड के बाद जब पहली बार कॉल करेगी उस समय ले ले, और कुछ पैसे कंपनी थोड़े टाइम और बाद जब कंपनी को एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होगी फंड्स की उस समय ले ले। तो इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी अपने फंड्स को, अपने 10 रुपीज को स्मॉल स्मॉल इन्वेस्टमेंट में बांट दे, और इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी उनको पूरे एक सिंगल टाइम में ही सारे पैसे ले ले। इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी एंड इट टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनीज रिक्वायरमेंट कि कंपनी अपने फंड्स को एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ ही पूरा कलेक्ट कर ले, और द कंपनी अपने फंड्स को स्मॉल टुकड़ों में, छोटे छोटे भाग में बांट के पैसों को शेयर होल्डर से कलेक्ट। ये हम यहाँ इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी हैव टू पुट अ प्रॉपर क्लेरिफिकेशन कि कंपनी ने जो भी पैसे कलेक्ट किए हैं वो किस बिहाफ में कलेक्ट किए हैं या क्यों किए हैं। जैसे अगर कंपनी पूरे पैसे एक साथ ले लेती है तो उसके लिए हम कहते हैं रिसिप्ट, उसका जो एंट्री हमारी हो जाती है वो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की कंबाइन एंट्री जाती है। और अगर कंपनी बाय फॉरगेट करके स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके पैसे कलेक्ट करती है जनरल पब्लिक से, तो उसके लिए हम अलग कंसर्न एंट्री पास करते हैं ताकि कंपनी को दूसरों को समझाने में भी चीजें इजी हो, एज वेल एज द इट बिकम वेरी इजी फॉर द कंपनी आल्सो टू अंडरस्टैंड दिस मच अमाउंट we collect or company can collect on behalf of which portion, means on behalf of application, allotment, first call or second or final call. Now we will discuss what all accounting treatment the company is going to do when the company issues share in the market. बेसिकली ऑन शेयर एप्लीकेशन, जब कंपनी शेयर्स के लिए, जब कंपनी के पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आती हैं, एप्लीकेशंस कौन करता है? एप्लीकेशन बी, जनरल पब्लिक एप्लीकेशन करती है। जब कंपनी के पास शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती है, जस्ट सपोज कि मिस्टर ए हैं, उनको कुछ पैसे, उनको कुछ शेयर्स चाहिए हैं, तो वो क्या करेंगे? एप्लीकेशन पे जितना भी पैसा कंपनी ने फिक्स करके रखा हुआ है, लेट अस सपोज कंपनी ने अगर 2 रुपीज फिक्स करके रखा हुआ है, तो मिस्टर ए क्या करेंगे? वो 2 रुपए कंपनी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंपनी में जाकर के जमा करेंगे। तो कंपनी चूंकि कोई ऐसी एंटिटी तो होती नहीं है, तो वो क्या करते हैं? कंपनी के बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। मींस the account that is mentioned in the prospectus on behalf of company, the shareholder or the person who is applying for share can submit the fund on that particular account. Means जब भी पहली बार कोई भी पर्सन शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो किस अकाउंट में फंड्स को देगा? वो कंपनी के बैंक अकाउंट में फंड्स को सबमिट करेगा। तो फंड्स किस में जा रहे हैं? बैंक अकाउंट में। इसलिए फर्स्ट जो हमारी एंट्री होती है वो क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट होता है। और कंपनी के पास, कंपनी के बैंक में पैसे क्यों आए? क्योंकि इंडिविजुअल पर्सन ने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाले, तो इसलिए हम ये एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। The things are very clear. We can, if we want, we can learn all the things. But once we understand the things, the concept is clear and there is no need to learn the things. So please try to focus and try to understand why we pass all these entries. Basically, हमारे बैंक में, कंपनी के बैंक में कुछ पैसे आ गए, और पैसे क्यों आए? क्योंकि जनरल पब्लिक ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, तो इसलिए हमारा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ क्योंकि हमारे बैंक में पैसे आ गए। पैसे क्यों आए? क्योंकि शेयर्स की एप्लीकेशन हुई, इसलिए हमारे बैंक में पैसे आए। अब कंपनी के बैंक में पैसे आ गए, बैंक में पैसे आने के बाद कंपनी क्या करेगी? उन पैसों को, पैसे क्यों आए थे? ताकि कंपनी का कैपिटल फॉर्म हो सके, इसलिए उन पैसों को, जो हमारे एप्लीकेशन के पैसे थे, उनको कंपनी ट्रांसफर कर देगी अपने शेयर कैपिटल।
या इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो इसलिए हमारी जो सेकंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। These two entries are very common and we all have to pass the same entry in every issuing of share transactions। मतलब पहले कंपनी के बैंक में पैसे आए, क्यों पैसे आए? क्योंकि उस कंपनी में शेयर्स की एप्लीकेशन हुई। फिर कंपनी ने क्या किया, अपने उन एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि कंपनी ने डिसाइड किया कि यस वी हैव टू गिव अलॉटमेंट। कंपनी ने क्या कर दिया, कंपनी ने उन पर्टिकुलर पर्सन को जिन्होंने भी हमको शेयर्स के लिए अप्लाई किया था या कंपनी को शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उनको कंपनी ने पैसे लेकर उनके और कंपनी ने उनको शेयर्स दे दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन अकाउंट से पैसे चले गए और कंपनी ने उनको क्या दे दिया, कंपनी ने उनको कंपनी के शेयर्स दे दिए। इसलिए सेकेंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब चूंकि वी ऑल नो कि हमारे शेयर होल्डर्स कौन है, हमको अब क्या करना है या हमको अब किससे बात करनी है आगे, तो अब सेकेंड टाइम में कंपनी डिमांड करेगी पैसे की, ना कि हम जनरल पब्लिक खुद से जाकर के कंपनी को पैसे देंगे। क्योंकि कंपनी डिमांड कर रही है पैसे की, तो कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेगी। कंपनी कहेगी हमारा शेयर अलॉटमेंट, हम मिस्टर ए को इतना रुपए का शेयर दे रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्योंकि कंपनी का शेयर इतना शेयर अलॉट हो रहा है, तो इसलिए कंपनी के शेयर कैपिटल में इतने पैसे आने चाहिए। तो इसलिए कंपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को डेबिट करेगी और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी। उसके बाद क्या होगा, जनरल पब्लिक फिर अलॉटमेंट के पैसे कंपनी को देगी। मतलब जब कंपनी हमें शेयर्स अलॉट कर देगी, उसके बाद जो भी जनरल पब्लिक जिन्होंने भी शेयर्स को परचेज करने के लिए अपने एप्लीकेशंस डाले थे, वो लोग कंपनी को अलॉटमेंट के बाद जितने भी पैसे कंपनी ने फिक्स किए थे, उतने पैसे कंपनी को पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स देंगे। तो वो किस अकाउंट में देंगे, अगेन वो देंगे बैंक अकाउंट में। इसलिए फिर क्या होगी सेकेंड एंट्री हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक में कंपनी के पैसा गया, क्यों गया, क्योंकि कंपनी ने मिस्टर ए को शेयर्स अलॉट कर दिए। तो मिस्टर ए ने बैंक में कंपनी के अलॉटमेंट के पैसे मिस्टर ए ने कंपनी को दे दिए। इसलिए हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसी तरीके से कंपनी अपने जितने भी शेयर्स के रुपीस हैं उसको बाइफर्केट कर सकती है, शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और उसके बेसिस पे कंपनी जनरल पब्लिक से पैसों को कलेक्ट कर सकती है। ऐसे ही हमारी फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की भी एंट्रीज होंगी। मतलब अब कंपनी क्या करेगी, अब थोड़े टाइम के बाद कंपनी पे फर्स्ट कॉल के पैसे अपने शेयर होल्डर्स से मांगेगी। तो शेयर कंपनी किस तरीके से एंट्री पास करेगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मींस कंपनी के फर्स्ट कॉल के पैसे अब यहाँ पे ड्यू हो रहे हैं, कंपनी के शेयर कैपिटल में फर्स्ट कॉल के पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई है। क्योंकि अब जो भी शेयर होल्डर्स हैं, they must know कि now the time has come and we have to pay the first call amount to the company। तो इस केस में जो शेयर होल्डर्स हैं वो क्या करेंगे, कंपनी के बैंक अकाउंट में फर्स्ट कॉल पे जितना भी कंपनी ने अमाउंट फिक्स किया था उतने पैसे शेयर होल्डर्स कंपनी को दे देंगे। तो वो कहाँ देंगे, वो कंपनी के बैंक अकाउंट में। इसलिए हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट होगा। और क्यों देंगे, क्योंकि कंपनी का फर्स्ट कॉल आ चुका है शेयर होल्डर्स के पास। कंपनी का वो टाइम आ चुका है जिस समय शेयर होल्डर कंपनी के फर्स्ट कॉल पे जो भी फिक्स्ड अमाउंट थे वो कंपनी को शेयर होल्डर्स दे दें। इसी तरीके से अगर कुछ रिमेनिंग अमाउंट बचता है देन द कंपनी मेक सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कंपनी सेकेंड एंड फाइनल कॉल के लिए भी एंट्री हम सेम पास करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मींस कंपनी सेकेंड और फाइनल कॉल के लिए शेयर होल्डर्स को कॉल करेगी और शेयर कैपिटल में उसकी फंड्स को क्रेडिट करेगी। फिर जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो उसी तरीके से कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे देंगे। तो इसलिए हमारा बैंक अकाउंट या कंपनी का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और पैसे क्यों आए कंपनी के अकाउंट में, क्योंकि कंपनी के सेकेंड एंड फाइनल कॉल भी शेयर होल्डर्स ने कंप्लीट कर दी। मतलब शेयर होल्डर्स फाइनली कंपनी को फुल
फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अ सिंगल शेयर होल्डर ने कंपनी को पे कर दिया। इस तरीके से हम अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं। दीज एंट्रीज आर वेरी इजी, देयर इज नथिंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट द थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री बैंक की इसलिए होती है क्योंकि एप्लीकेशन के टाइम में कंपनी डजंट नो कि हम कौन है हमारा शेयर होल्डर, बट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में पहले कंपनी कॉल करती है क्योंकि कंपनी को पता होता है कि कौन है हमारा शेयर होल्डर। तो कंपनी क्लियरली ये जानती है कि हमको किसको कॉल करना है, उसके बेसिस पे कंपनी कॉल करती है शेयर होल्डर्स को और कंपनी पैसे को शेयर होल्डर से कलेक्ट करती है। इसलिए अलॉटमेंट के बाद से हमारी जो भी एंट्रीज होती है उसमें हमारा बैंक अकाउंट डेबिट सेकेंड एंट्री में होता है और एप्लीकेशन में हमारा बैंक अकाउंट डेबिट फर्स्ट एंट्री में होता है। I think the issue of share is complete and is quite easy to understand. If you have any doubt, any confusion, any query regarding this, then please write in comment. Thank you.